Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We are meditating on self-control. और हम संयम के बारे में मनन कर रहे हैं। 1 Corinthians chapter 9 पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय 1 Corinthians chapter 9 verse 24. और 24 वचन। Do you know that those who run in race all run but one receives the prize? क्या Run- तुम जानते हो कि जो दौड़ते हैं वो सभी दौड़ते हैं, केवल एक को ही इनाम मिलता है। Run in such a way that you may obtain it. और इस तरह दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। Verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. और मैं मेरे अपने आप को काबू में लाता हूँ ताकि जब मेरी परीक्षा होती है तो उस समय मुझे निकारा नहीं जाए। Self control needs practice. और खुद को काबू में लाना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। It needs discipline, dedication, interest. और मतलब अपने आप को सुधारना, अपने आप को मेहनत करना और अपने आप को काबू में लाना। We have to sacrifice so many convenience. और बहुत सारे अपने स्वार्थ को हमें त्यागना है। If we see the sportsmen, how much they practice. थैंक यू। और हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले कितने मेहनत करते हैं। They wake up before 5 o'clock, do everything and do exercise. वो बहुत सुबह उठते हैं 5 बजे और वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। They all work for the crown which is perishable. और वो इस इनाम के लिए मेहनत करते हैं जो इनाम थोड़ा समय का होता है। But we are working for the crown which is eternal. और हम उस मुकुट के लिए मेहनत करते हैं जो सनातन का है। Galatians chapter 5 और गलातियों का 5वां अध्याय कैन से रीड इट फ्रॉम देयर ओनली बुक। Galatians chapter 5 verse 23. गलातियों का 5वां अध्याय 23 वचन। 22 and 23. 22 और 23 वचन। But the fruit of spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. और उसमें आत्मा का फल दिया है। आप लोग प्रेम, दया, माया और Self control. और संयम या So, if we want self control, we must have spirit. और यदि आपको अपने काबू में लाना है अपने आप को तो उसमें आत्मा की ज़रूरत है। Then only we can control ourselves. तभी हम अपने आप को काबू में ला सकते हैं। So, same chapter verse 16 says, और वही अध्याय 16 वचन लिखता है, I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. और मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा में चलो और तुम शरीर की अभिलाषा को तुम जगा नहीं दोगे। Verse 24, 24 वचन। and those who are in Christ have crucified the
flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु में है उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर मार दिया है और Desires and patience. और अपने जो Flesh. लालसा और जो उनकी अभिलाषा है उसको क्रूस के ऊपर टांग दिया है। Yes, brothers and sisters, Paul says there is no good thing in my flesh. और पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में ऐसी कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। If we self-control means control ourselves, और अपने control आप our flesh. अपने आप को काबू में लाना यानी हमारे शरीर हमारी जो स्वार्थ है उसको काबू में लाना। Flesh means our eyes, our thoughts, our tongue. और शरीर यानी हमारी जो जीभ है, हमारे आंखें हैं, हमारे दिल है, ये सब चीज़ शरीर में आ जाता है। James chapter 3 verse 8. James says here, nobody can tame tongue. और आयुब का 3 और 8 वचन में लिखा है कि ये मनुष्य की जो 3:8 ना 3:8. कि मनुष्य का जो जबान है पर उसको जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। Yes, but with God nothing is impossible. और परमेश्वर के साथ ऐसा कोई चीज़ असंभव नहीं है। If we humble ourselves, God will grace. If we obey God, God will give us Holy Spirit. Then we can tame the tongue. और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और तो परमेश्वर हमें आत्मा देगा और शक्ति देगा कि हम अपने जबान को काबू में ला सकते हैं। Our whole Christian life is not my will but thy will. और हमारा सारा क्रिस्ती जीवन इस तरह है कि मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा हो जाए। Under the leadership of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। Hebrews verse 12. इब्रानियों की 12 अध्याय 1 and 2. 1 और 2 वचन। Therefore, we also, since we are surrounded by a great cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Yes, our aim, fix our eyes on Jesus and run. हमारा लक्ष्य केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताकना है। Once one old man was get into the bus. एक दफ़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ रहा था। There was no seat. और बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी। He had only one leg. उनको केवल एक ही टांग थी। Then one young boy stand up and gave place to the old man. और एक युवक ने अपनी जगह उस बुजुर्ग को बैठने के लिए दिया। The old man had one Bible in his hand.
और ये बुजुर्ग के पास एक बाइबल हाथ में था। He sat down with, "Thank you, Lord Jesus, you have given me place." और वो बैठ गया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसने उसको जगह मिली करके। That boy irritated. और वो युवक को गुस्सा आया "I have given you place. कि मैंने तुम्हें जगह दिया है You have only one leg. और तुम्हें केवल एक ही टांग है, You have to curse God और because you have one leg." और तुम तो खुदा को श्राप देना चाहिए था, But you did not thank me also. और मुझे भी तूने धन्यवाद नहीं किया। So how is it possible? He asked. और ये कैसा संभव है करके उसने सवाल किया। Then the old man bring that boy nearby him. और उस बुजुर्ग ने उस युवक को करीब लाया "My son, please listen." और कहा, मेरे बेटे सुन लो। With kindness he talked. बहुत उसने दया के या प्रेम से उसे बात किया। "My son, in this world I am going to live for few days or few months or few years. और मेरे बेटे, इस जीवन में मैं थोड़ा ही दिन का मेहमान हूँ। Till today God has given me strength और आज तक परमेश्वर ने मुझे बल दिया है to live in this world. इस जीवन में जीने के लिए। But God has prepared me big palace in heaven. मगर स्वर्ग में मेरे लिए बहुत बड़ी एक महल तैयार किया है। So I am thinking about that. और मैं उस महल के बारे में सोच रहा हूँ। Always that thought is in my mind. और उस विचार में मैं मगन हूँ। God is so good. और परमेश्वर इतना अच्छा है। That is eternal place for me. और सनातन की जगह मेरे लिए है। So I am very happy. और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। So I am thanking God. और इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ Then परमेश्वर that को। boy realized, तभी उस युवक को मालूम हुआ, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, like that our aim is looking at Jesus. क्या हमारा लक्ष्य इस तरह है कि प्रभु को ताकते हैं कि हम लोग Let us run the race with to receive praise. और हम इस तरह दौड़े कि जरूर हमें इनाम मिलने वाला है। God gives grace to the humble, परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है, but he resists the proud. और घमंडी से वो बैर कर रखता है। We can test whether we are humble or proud. और यदि हम नम्र है या घमंडी है, वो हम खुद देख सकते हैं। If I seek man's honor, man's यदि applause, I am proud. यदि मैं मनुष्य का आदर चाहता हूँ तो मैं घमंडी हूँ। If I think about me of high thoughts, I am proud. यदि मेरे खुद के बारे में मैं वो बड़े विचार करूँ तो भी मैं घमंडी हूँ। I should not seek man's honor. और मैं मनुष्य का जो आदर प्रशंसा को नहीं चाहना चाहिए। I think about low thoughts about me. मेरे बारे में ज़्यादा भी ऊंचा सोचना भी अच्छा नहीं है। Humble person acknowledge his own faults. नम्र मनुष्य अपने गलतियों को एहसास करता है Always ready to repent immediately. और तैयार होता है पश्चाताप करने के लिए। Always obey. हमेशा आज्ञा का पालन करता है। Sometimes we criticize. और कभी हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, Find fault with others. और दूसरों की गलती निकालते हैं। We sometimes it happened to me. कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। I did not criticize that sister to this brother. और मैंने इस भाई या उस बहन को मैंने दोष नहीं लगाया है, But in my mind I criticize. मगर मेरे मन में हमने ऐसा किया है। That also shows you are proud. और उस कारण भी मैं घमंडी बन सकता हूँ। For example, if I go from duty immediately
hot tea must be there. और जब मैं काम से लौटता हूँ तो मुझे घर में गर्मा गर्म चाय मिलना चाहिए। If tea is not there, in my mind I am criticizing. These ladies are like that only. 24 hours they are sitting at home after coming husband, immediately tea is not ready. Every day they are seeing the correct time. At that time tea is not ready. My mind, it is criticizing is going on. और हम जो मनुष्य हैं वो अपने ड्यूटी से घर लौटते हैं तो एक गरम गरम चाय की अपेक्षा रखते हैं, और यदि ये नहीं मिली तो हमें गुस्सा आता है और हम हमारी पत्नी के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं अपने मन के अंदर। My dear brothers and sisters, let us repent. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पश्चाताप करें। We humble ourselves before God. और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। God will grace. God will give grace. और परमेश्वर अनुग्रह करेगा। God will give Holy Spirit. और पवित्र आत्मा भी देगा। Then self-control is very easy. और तभी अपने आप को काबू में लाना बहुत आसान है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।